Okay, so these are the slope deflection equations that we derived last time. These are the end moments equation, and these are the end shear equation. And you see theta A, theta B, VB and VA, these are the nodal displacement measures. So these are basically end moments, or sorry, end actions and nodal displacement relationships. So we are going to start with a numerical example. But before going to the numerical example, let's have some discussion on a general problem so that you can develop the procedure. For example, we have this beam. Let me copy it down over here. Let me also take these figures down. So for this beam, the first thing to identify is the unknown displacement measures. You can see that the rotation at A is unknown because it is not prevented. So we don't know the rotation at A. Okay, so we do not know theta A, and we do not know theta B because it is unknown, and we know theta C because it is 0. We also know all these deflections to be all these displacements to be equal to 0. Agree? These are 0. Theta C is also 0. So the only thing that we do not know at this stage is theta A and theta B. In case of force method, the unknowns are the reactions, the redundants. You pick some redundants, you solve for those redundants, and then you apply equilibrium equations to solve for the rest of the reactions. In case of displacement method, the primary unknowns are some displacement measures. So you need to start with which displacement measure is known and which needs to be determined. So starting with the displacement measures, we have found that we have 3 nodes and there are two possible displacements at each node, one translation and one rotation. We have found that out of these, only 2 are unknown, rotation at A and rotation at B. Now, if you remember the general procedure for displacement method that we discussed up here, even before that, right here, before starting the discussion, this is the very first lecture of displacement method. If you remember, the first thing to do would be to start with nodal equilibrium equations. Conceptually speaking, you need to start with nodal equilibrium equations. But keep in mind, you need to start with those nodal equilibrium equations, corresponding to those. So these will be nodal equilibrium equations corresponding to the unknown displacement measures. And this is the reason you need to first identify which displacement measures are unknown. So if you go back over here, you can see that we have 2 displacement measures unknown, theta A and theta B. So we will be writing down the nodal equilibrium equations corresponding to these 2 unknown displacement measures. For example, if you draw a free body diagram of node A, as you can see over here, let's first discuss how we draw the free body diagram for a node. This is not free body diagram for a member. This is free body diagram for a node. Now, you see that at this node, we have a support, agree? And then we have a member connecting to this node. And you can see a small segment of the member, AB, being shown over here. This length of this segment is approaching to 0, and this is just to show that this is connected. We have cut the section over here. We have cut it just to the right of this support, and then that small segment of the beam AB, that small segment of small length of AB is appearing in the same nodal in the same free body diagram. Of course, when you cut a section, you are exposing some internal forces, which in case of a beam are a shear and a bending moment. And that's why you see a shear and a bending moment. Why do you think they are downward and clockwise? Because if you draw a free body diagram for this segment AB, if you draw a free body diagram for AB, let me draw a longer one. This is A and this is B. If you cut section just over here and just to the left of the support, and then you draw free body diagram, of course there will be some external loading as a part of it, as you can see this segment over here, and then
you will have some internal forces up here and some internal forces. Those are actually some internal forces. But since we in the derivation, again this is related to derivation, you can understand this point only if you have understood the derivation. In the derivation, we considered certain directions for these end actions. If you remember, we assumed for the end shears, we assumed acting upward will be positive, and for the moments, we assume acting counterclockwise would be positive. So we assume something like this, VAB, and then we assumed this direction, MAB, as positive, and then we assumed this VBA positive. These are the positive directions of these end actions, MBA. All right, these are the positive directions. Now, you see, what is this? When you say VAB, what does it mean? The action of this small segment of the beam on this longer segment. If you assume this to be upward positive, it means you will assume this one to be a downward positive, because the same force will have a different direction acting on the other body. This is from Newton's third law. I hope you understand this thing. So, for that reason, so the sign convention for the end actions, end shears as well as end moments, is based on when these are acting on the member. So the sign convention says end shear is considered positive when it is acting upward on the member. All right, and similarly, this end moment is considered positive when it is acting counterclockwise on the member. So for the joint, these will be reversed. Look at this. This upward acting force is now shown as a downward acting force. This is the same force, same magnitude, but of course opposite direction. And similarly, this end moment acting on the member will be in the opposite direction, clockwise. So both are positive directions. This is positive direction. This is also positive direction. One is action of the node on the member, and this one is the action of the member on the node. All right. And similarly, other end actions, as you can see in the rest of the free body diagram. If you can see this is the end. This is node B free body diagram. So you can see a support over here, as you can see over here, and you can see some end actions on this side, and similarly some end actions on this side, an end shear and an end moment, and similarly an end action, end shear and an end moment on the other side. Now they have different names because look, this is VBA. VBA means this is the action of the end shear at B on AB member. Similarly, VBC means, VBC would have been shown like this on the member, VBC. Similarly, this would have been MBC. This would have been VCB, and this would have been MCB. So, and let me show you on parallel over here the one that we have already discussed. This is VAB, and this is MAB. This is VBA, and then this is MBA. Now, why you think we need to have two subscripts for end shear or an end moment? Why is not a single subscript enough? Why can't we call this as simply VA and this is simply VB? Yeah, we can have VB acting on C segment, the other segment, BC segment, and we can have VB representing as an end shear on the AB segment. So B is a common node. It means you need to tell where is that acting with the first subscript, and then you need to tell which segment is it acting on. Anyways, for those who have been through the derivations, I hope you will understand them well, but if you haven't been through the derivation, you may be facing some problems right here, as I mentioned before. But anyways, these are the free body diagram of the nodes. Now, although you have all the equations of equilibrium valid over here, what I mean by that is, this equation is valid, this equation is valid for this node. Similarly, both set of equations are valid for this node, and similarly both are valid
for this node. These are valid. I mean, अप्लाई हम कर सकते हैं, ये नहीं कि ये अप्लाई नहीं होती, बट वाई वी नीड टू स्टार्ट विद सम स्पेसिफिक, आई मीन, या मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताएं मैं किन इक्वेशन से स्टार्ट लूंगा. ये भी दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है फॉर दिस नोड, फॉर दिस नोड. ये भी दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है फॉर दिस नोड, एंड ये भी दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है फॉर दिस नोड. विच आई नीड टू स्टार्ट विद टू इक्वेशंस. विच टू? किन दो से मैं स्टार्ट कर लूं? यहां से स्टार्ट कर सकता हूं. It corresponds to vertical displacement at A. Is that an unknown? No, that is a known thing. So we don't need to start with something that is known. We need to start with nodal equilibrium equations corresponding to unknown displacement measure. This is the important thing. You need to start with nodal equilibrium equations corresponding to unknown displacement measures. And this is the reason I first identified that theta B and theta C are the two unknown displacement measures. All right, so what do you think? Which equation should I start with? Should I start with this equation? Why? It corresponds to an unknown displacement measure at A. So the summation of moment equation at A will be one of the equations we will be starting with. So let's say this is what we are going to start with. One is selected. What about this one? Should I start with this one? This is a nodal equilibrium equation for node B. Summation of vertical forces in the upward direction equal to 0. Can I start with this? Should I be starting with this? No, because it corresponds to a displacement measure VB, which is something known. What about summation m equal to 0? We can start with this because it corresponds to an unknown displacement measure, which is theta B in this case. Let me show you. This corresponds to theta A. This corresponds to theta B, and these are the unknown displacement measures. The rest of all displacement measures are known, so the equations corresponding to those displacement measures will not be used in the beginning, but we will come back to these equations to find out the rest of the unknown reactions करने के लिए हम बाद में वापस आएंगे, but this starting के लिए we have these equations to start with. ठीक है? These are the equations we are going to start with. So it means we will be writing summation m equal to 0 for this node. What do you think should the equation look like? ये joint एक node है, उसकी free body diagram given है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप इस equilibrium equation अप्लाई करें, summation m equal to 0 आप equation आप अप्लाई करें, तो what do you think, what should be the, क्या लिखना चाहिए मुझे? मतलब ये तो सिंपल फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्या क्या टर्म्स होंगी, थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्सिव होंगे तो फिर आपको समझ आएगी. अगर आप अपने दिल में सोच के इसलिए नहीं बोलते कि शायद गलत हो जाएगा तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगी. एम ए बी इक्वल टू 0, येस, आई मीन दिस इज द इक्वेशन. मैं लिखना शुरू हो जाऊंगा एम ए बी, और उसके बाद आपके ख्याल में इस फोर्स का मोमेंट मैंने क्यों नहीं लिखा? The distance is approaching to 0, so that force multiplied by a distance which is approaching to 0 will give you 0. Something approaching to 0, so that will not be a part of the equation. So that's why the only thing that you will see over here is MAB equal to 0. This is our nodal equilibrium equation corresponding to theta A, which is an unknown displacement measure. This is clear? Okay, what about the next equation? Summation of, so you consider this node and you write down the equilibrium equation, nodal equilibrium equation for moments. MBA plus, why do we add a plus sign every time we write down these equations? Why we have had a plus sign over here, although it would have not mattered for this case, but for the other problem we have seen, I mean for the other equation, this one, MBA plus MBC. Why do we say plus? Why don't we say minus?
The directions are, of course, when you say a positive, when you are writing a positive sign, it means the direction was something that you consider positive. But the point I want to make is, how do you know that this was a positive direction? I mean, where does it come from? Where does this equation, these end moments come from? They were applied acting on the member, and they were assumed to be in the counterclockwise sense. Just assume. This is as per sign convention. Later on, we may end up getting a positive sign or a negative sign for these end moments, MAB, MBC, and so on. But assuming that they are as per our sign convention, they are directed in the sense we consider positive, which is counterclockwise for this case. यहाँ पे ये clockwise हैं, ये इनको यहाँ clockwise होने के बावजूद क्यों positive consider कर रहे हैं? They are acting not on the member, they are acting on the node. So acting on the member, they are counterclockwise. Acting on the node, they are clockwise. Okay, so this is nodal equilibrium equation corresponding to theta b, which is again an unknown displacement measure. Agree? Now, this is the starting point. The starting point in case of force method was a set of compatibility equations in which the primary unknowns were, complete करें, certain forces. Most of the times we have some reactions as written, and although we have you must have seen in the later lectures that we can take internal forces, which are, for example, internal moments, as redundants as well, in which case then you need to consider the relative rotation. But then most of the times we can simply say those are certain forces, and the term forces include forces and moments both. So in case of force method, you start with compatibility equations in which the primary unknowns are certain forces. In case of displacement method, you start with equilibrium equations, to be specific, nodal equilibrium equations. And then in these nodal equilibrium equations, we are going to substitute some of the parameters that appear over here. क्या मैंने बताया था आपको? What was the general layout? ये हमने लिख दिए. External forces, no external force right now. ठीक है? उस नोड पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी? ये चीज कहां आ रही है? उस नोड पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही थी. आई एम सॉरी. लुक एट दिस नोड. यहां पे कोई फोर्स है? जैसे ट्रस में नोड पे कोई फोर्स होती है. यहां पे कोई फोर्स, कोई मोमेंट नहीं है ना. सो दैट्स व्हाई एक्सटर्नल नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही बाहर से, नॉट जो कि लोडिंग का हिस्सा हो, ऐसी कोई फोर्स नहीं लग रही. सो दैट्स व्हाई यू सी दिस इज जीरो. ये लिख लिया. सेकंड पैरेलल में क्या काम करना पड़ेगा? यू नीड रिलेशनशिप बिटवीन एंड एक्शंस. एंड एक्शन से यही मुराद है एंड मोमेंट्स एंड एंड शियर्स, और डिस्प्लेसमेंट मेजर्स के बीच में आपको रिलेशनशिप चाहिए, जो कि हमने डिराइव किया हुआ है. वो डेरिवेशन ये पार्ट था, ये वाला. वो जो पूरी डेरिवेशन लास्ट टाइम हुई है, बस वो ये सेकंड स्टेप हुआ है. पूरा सेकंड स्टेप उस डेरिवेशन में ये सिर्फ सेकंड स्टेप है. एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. Okay, so we go back. Let's see. We can go back. I can copy these. All right. So these are the equations that we derived last time. मैंने अब ये आपको m, यानी ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये इसमें एक मेंबर का एक एंड a था, दूसरा एंड b था. ठीक है? तो अगर मैंने इक्वेशंस जो मैंने सारी चार इक्वेशन, मैंने कितनी इक्वेशंस लिख ली? लेट मी सी. मुझे MAB, MBA, MBC और MCB, इन चार एंड मोमेंट्स के लिए मुझे चार इक्वेशन चाहिए. MAB के लिए, MBA के लिए, फिर इसी तरह MBC और MCB के लिए. यानी हर सेगमेंट के दो एंड्स हैं, और दोनों के ऊपर जो मोमेंट्स हैं उनके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए. सो आई नीड टू राइट MAB and then MBA
and then MBC and then MCB. ये MAB और MBC वो यहीं पे आप MAB और MBA यहीं पे आपको नजर आ रही है, ये वाली पहले से लिखी हुई है, यानी क्योंकि ये तो इनमें भी ये जो इक्वेशन डिराइव हुई थी वहां पे मेंबर का एंड एक A था एक B था, और हमारे केस में जो पहला सेगमेंट है उसका भी एक में एंड A है दूसरा B है, तो लिहाजा ये इक्वेशंस एज दे आर अप्लाई होंगी इस केस में भी, क्योंकि सैम्पल में कोई फर्क नहीं है। तो मैं इनको मिटा रहा हूं क्योंकि ये मेरे पास पहले ही लिखी हुई हैं, और मैं सिर्फ ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको लिखने जा रहा हूं। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू राइट दिस इक्वेशंस। ये 2EI, ये जो EI लिखा हुआ है, ये E तो मटेरियल है ना, जिस यानी ये सारी चीजें EI और L ये इस स्पैन की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इस यहां MBA के लिए भी लिखते हुए EI और L ये किस चीज की प्रॉपर्टीज हैं, इसी स्पैन की प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं इस अगले स्पैन या अगले सेगमेंट BC पे आऊंगा तो उसके अंदर मैं इनकी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। अच्छा, यहां पर हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उसमें इसका जो I है उसको नाम दिया गया है I1, इसका नाम क्या दिया गया L1। E सबके लिए एक जैसा है, इसका भी E वही है इसका भी E वही है, और इसको I2 और L2। और लोडिंग हमारे पास एक आर्बिट्रेरी लोडिंग शो की गई है, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं की, बस दी गई दिखाया गया कि कोई ना कोई बस सर्टेन लोडिंग है उसके ऊपर। ऑलराइट, अच्छा अब हम क्या करेंगे, MBC के लिए इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू 2E, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I1 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये I1 और ये L1, बाकी उसी तरह से ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे सेकंड स्पैन की बात कर रहा हूँ, मैं BC स्पैन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी BC स्पैन का I लिखूंगा विच इज I2 और L2। ठीक हो गया। व्हाट नेक्स्ट, 2, जब आप ये वाली इक्वेशंस लिख रहे थे, ये वाली इक्वेशंस, तो आपका सेगमेंट इस तरह था, ये A था ये B था, और अब जब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तो वो सेगमेंट ऐसे है B और C। इसका मतलब है इस इक्वेशन में जहां A लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं B लिखूंगा। ठीक हो गया। व्हाट नेक्स्ट, जहां B लिखा हुआ है उसकी जगह पे C -3 टाइम्स, जहां B लिखा हुआ है वहां पे C, VC माइनस VB बाय L2 अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज हो गई है, और आगे क्या लिखूंगा MBC फिक्स्ड। ठीक है, इसी तरह MCB, इसी इक्वेशन के अंदर अब मैं चेंजेस करता जाऊंगा, 2EI 2 over L2 इंटू क्या लिखूंगा, जहां A लिखा है वहां मैं क्या लिखने जाऊंगा, थीटा B प्लस 2 थीटा C माइनस, बताते जाओ, VC माइनस VB ओवर L2 MCB फिक्स्ड। क्लियर। आसान तरीका इसका ये है कि जहाँ पे पहला सबस्क्रिप्ट है वो एक इधर आएगा, यानी जिसके साथ 2 होगा, इधर आने से मराद है उसके साथ 2 होगा, और दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है उसके साथ 2 नहीं होगा। मतलब अगर आप कुछ इस तरह से याद रखना चाहें इनको, ठीक है। और ये दोनों केसेस में, चाहे आप MAB की इक्वेशन लिख रहे हो चाहे MB के A की इक्वेशन लिख रहे हो, दोनों में VB माइनस VA ओवर L है। ये नहीं कि यहाँ पे फिर VA माइनस VB ओवर L, ये दोनों में एक ही आ रहा है। ये इक्वेशन मैंने डिराइव की हुई है, ठीक। मैं सिर्फ अभी इस वक्त आपको आप कह लें कि इनको क्विकली अप्लाई करने का बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ वंस वी हैव दिस इक्वेशंस, अच्छा ये वाली वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू,
फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ये कहाँ से आएंगे? जो टेबल आपने वो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, इसलिए असाइनमेंट दी है कि आप जब इसको यहाँ यूज़ कर रहे हो तो आप इसको सिर्फ गायबाना तौर पे यकीन करके यूज़ ना कर रहे हो, आप वाकई उसको डिराइव करके यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डिराइव दोज रिजल्ट्स। तो उस टेबल में आपने जाना है, वहाँ से आपने यूज़ करनी है। किस टेबल में? अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हो तो मैं आपको दिखा दूँ, अदरवाइज नॉट श्योर कि मैंने कहाँ रखा है उस टेबल को। यस, ये है FEMs। यहाँ से डिपेंडिंग अपॉन योर लोडिंग केस, डिपेंडिंग अपॉन योर एंड कंडीशंस विच शुड बी फिक्स, अगर हम फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया? ऑलराइट, सो इसका मतलब है इसको निकालना तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। दिस विल बी समथिंग नोन टू यू आफ्टर यू यूज द टेबल। इसके अंदर भी आपने साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है, ठीक है? काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एक्टिंग ऑन द मेंबर। ऑलराइट, अब ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। ऊपर आपके पास ये 2 नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी। अगर मैं फिर आपको उसी लेआउट पे लेके चलता हूं जिसमें मैंने आपको बताया था, अब हमने 2 काम कर लिए, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो एंड एक्शंस को आपने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर्स लिख दिया, VA, VB, थीटा A, थीटा B, इनको आप इसी इक्वेशन में यहां पुट कर देंगे। तो ये जो आपको इक्वेशन एंड एक्शंस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस की फॉर्म में नजर आ रही है, ये इक्वेशन सम फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर्स में आ जाएगी और साथ में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं तो वो आ जाएंगे। इस केस में हमारे पास वो 0 है। अच्छा, एनीवेज लेट मी टेक यू बैक टू दिस प्रॉब्लम। अब हमने इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कर दें कि MAB की जगह पे ये देखें, ये वैल्यू यहां से उठा के अगर मैं यहां पुट कर दूं और फिर इसी तरह नीचे जो इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं MBA और MBC, इनकी वैल्यूज में यहां से उठा के यहां पुट कर दूं, तो ये जो आपको 2 नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस नजर आ रही हैं, MAB की जो इक्वेशन है MAB इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा A, थीटा B, VB और VA और ये फिक्स एंड मोमेंट, इनकी फॉर्म में हो जाएगी ना? एग्री? और ये आपको पता है, ये नॉन है आपको, यानी इस इक्वेशन के अंदर 4 डिस्प्लेसमेंट मेजर्स आ जाएंगे। इसी तरह से MBA की जगह पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ऑफ कोर्स और भी चीजें होंगी जैसे EI और L हैं, उसके अंदर भी थीटा B, थीटा C और VB और VC, ये चार चीजें और आ जाएंगी। एग्री? इसी तरह MCB की जगह भी यही 4 चीजें आएंगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये 2 इक्वेशंस हैं, दोज विल बी इन टर्म्स ऑफ, मैं सिर्फ फंक्शन के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ कि किस फॉर्म में होंगी, या अगर मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट हो तो मैं आपको वो रिजल्ट दिखा देता हूँ, अगर बुक में डायरेक्ट रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल हो। ये 2 इक्वेशंस की हमने बात कर ली है और ये वो नोडल एंड मोमेंट्स का रिलेशनशिप विद द एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड मोमेंट्स की जगह पे इनटू द मोमेंट नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे जो मैंने आपको तक पहली वाली इक्वेशन में ये वाली शक्ल बन जाएगी। एग्री? सेकेंड वाली इक्वेशन की ये वाली फॉर्म बन जाएगी। एंड आई रिपीट, दोज आर ऑल इन टर्म्स ऑफ थीटा A, थीटा B, VB, VA, VC एंड थीटा C। इनकी फॉर्म में है ना, ये काउंट करो। मैं आपको ये उधर ले जाता हूं ताकि आप इसको, ठीक हो गया? अब जरा प्रॉब्लम को समझिएगा। हमने इनिशियली वैसे हमें कहा नहीं है कि VA, VB और VC, और ये प्रॉब्लम में वैसे मेंशन नहीं था, लेकिन जिस तरह गिवन था उस तरह हमने ले लिया। यानी VA सपोर्ट लगी हुई थी A के ऊपर, तो हमने कहा यहाँ पे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। इसी तरह से बाकियों के बारे में एज्यूम किया। अब जरा प्रोसेस को देखिएगा। अगर ये 0 हैं, लुक एट दिस, अगर ये 0 हैं, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर 0, या 0 ना हो और कोई वैल्यू में गिवन हो,
मसलन हमें गिवन हो कि ये जो सपोर्ट है ये 3 मिलीमीटर सपोर्ट ये सेटल हो रही है, तो VA की वैल्यू फिर 0 तो नहीं होगी, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नॉन वैल्यू होगी। अगेन ये एक नॉन डिस्प्लेसमेंट मेजर ही रहेगा। In any case, you will be knowing these values: VB, VA, VB, VA, VC, VB, agree? ये आपको नॉन होंगी। And what about theta C? Theta C कहाँ चला गया? 0. That was 0. So उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है और then disappeared. आपको शुरू में ही यहाँ पे नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि जब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, ये 4 इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, MA, MBA और इसी तरह से ये चारों इक्वेशन, इनके अंदर जो चीज 0 हो हम इधर ही उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बिफोर पुटिंग देम इनटू नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ताकि वो इतना बल्कि इक्वेशन कैरी करने के बजाय यहीं पे जो चीज सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर दें। सो यहीं पे आप कर रहे होंगे कि थीटा C is 0. सिमिलरली इफ दीज आर ईदर 0 और इक्वल, दोनों सूरतों में, क्योंकि इनके डिफरेंस आ रहा है ना, मसलन ये VB माइनस VA चाहे दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली 0 हो या किसी भी सूरत में इक्वल हो, जब तक इनके बीच में डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो। डिफरेंशियल सेटलमेंट समझते हैं ना, कि एक एंड दूसरे एंड के मुकाबले में ज्यादा या ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, दोनों सेम अमाउंट से चले जाए, यूनिफॉर्म सेटलमेंट, नो प्रॉब्लम। अगेन सम सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो 0 जाएंगे, सॉरी 0 जाएंगे। ऑलराइट, सो इट मीन्स कि हमारे प्रॉब्लम के अंदर वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशन से वी विल बी एबल टू कैलकुलेट थीटा A एंड थीटा B। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी बाय सॉल्विंग 2 इक्वेशंस विद 2 अननोन्स, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। थीटा A और थीटा B की वैल्यूज आ गई हैं। नाउ यू कम बैक टू योर एंड मोमेंट्स। मैं आपको फिर से वो उसी स्टोरी के साथ फिर जोड़ने लगा हूँ इसको। एक और स्टेप कर लिया ना, ये इक्वेशंस बन गई, ये मैंने आपको कहा था ये सीरीज ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये 2 इक्वेशंस थी, ये 4 इक्वेशंस थी, ये 2 इक्वेशंस बन गई। ये इन्हीं 2 इक्वेशंस को एक्सपैंड करके इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर्स लिख दिया। इन 2 इक्वेशन से 2 अननोन डिस्प्लेसमेंट आ गई। वी हैव सॉल्व फॉर द अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। नाउ वो इनिशियली अननोन थे, लेकिन अब वो कैलकुलेट होने के बाद हमें पता चल गया इनकी वैल्यूज इतनी हैं। सो नाउ वी नो देयर वैल्यूज, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट देयर वैल्यूज बैक इनटू दीज इक्वेशंस जो स्टेप नंबर 2 के अंदर लिखी हुई हैं। जब ये वैल्यूज नोन हो चुकी हैं और हमारे एंड एक्शंस इन्हीं की फॉर्म में लिखी हुई हैं, इट मींस एंड एक्शंस वी विल बी एबल टू कैलकुलेट ऑल द एंड एक्शंस। Agree? So this is what we are going to do in this step. ये सारी वैल्यूज, दोनों वैल्यूज थीटा A थीटा B की आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा C और ये तो मैंने आपको दिखा दी ना 0 हैं, ये खत्म हो जाएंगे। So we will be able to calculate MAB, MBA as well as MBC and MCB. ये चारों हमें नॉन हो जाएंगी। Agree? Now look at this. ये 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी ना शुरू में हमारे पास, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, उनमें से 2 हमने राइट अवे स्टार्ट के अंदर यूज कर दी, विच वर करस्पॉन्डिंग टू थीटा A एंड थीटा B, विच वर दी अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। बाकी इक्वेशंस हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। एग्री? सो इट मींस वी कैन कम बैक टू दीज इक्वेशंस एंड फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इक्वेशन, लुक एट दिस नोड। इसके अंदर अब हमें ये चीज पता है, ये एंड शियर, अच्छा एंड शियर हमें, एंड शियर की मैंने बात अभी नहीं की। लेट मी शो यू कि एंड शियर कैसे कैलकुलेट हो सकता है। एंड शियर कैलकुलेट होने का एक तरीका तो ये है कि जैसे आपको भी मोमेंट की इक्वेशन नजर आ रही थी ना यहाँ पे, ये जैसे ये नजर आ रही थी, इसी तरह से आपको ये शियर्स की इक्वेशन भी नजर आ रही है। तो आप चूंकि आपको एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर तो सारे नोन हो चुके हैं ना, तो आप उन वैल्यू की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, आपको VAB VBA ये भी मिल जाएंगे। इसी तरह से आपकी इक्वेशन VBC और VCB की भी लिखी होंगी। वो इसका मतलब है आपको नॉन बाय देयर आर 2 वेज। एक तो ये कि आप डिस्प्लेसमेंट मेजर्स को सब्स्टिट्यूट कर दें इनटू द इक्वेशंस रिलेटिंग एंड शियर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्विलिब्रियम, यानी आप सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर दें, यानी आप ऐसे यूज करें। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये मेंबर है, इस मेंबर के आपको ये वाला एंड मोमेंट पता चल गया, ये वाला एंड मोमेंट भी पता चल गया। अब ये दोनों एंड मोमेंट्स नॉन है, इस पे जो भी ऊपर से लोडिंग लग रही होगी वो भी आपको एक नॉन लोडिंग होगी।
आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन जैसे आप रिएक्शन नहीं निकालते उस तरह से आप रिएक्शन ये एंड शेयर्स निकाल सकते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि अब ये दो नोन हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं, MBC आपको नोन है, MC भी आपको नोन है, सो आपको लोडिंग जो भी गिवन होगी वो भी पता होगी, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दीज टू एंड शेयर्स। इसका मतलब है दो तरीकों से हम कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब मैं आपको वापस लेके आ रहा हूँ कि एंड मोमेंट्स भी आपको सारे पता चल गए, एंड शेयर्स भी आपको सारे पता चल गए। अब हम लास्ट स्टेप में अगेन वी आर कमिंग बैक टू दोज नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, लेकिन this time we will be using those nodal equilibrium equations which correspond to known displacement measures. For example, ये displacement measure known है ना, VA equal to 0 known है ना, इसके corresponding ये equation है summation Fy equal to 0। इसके ऊपर अगर आप summation Fy equal to 0 यूज करेंगे तो आपको look at this में, सॉरी थोड़ी जगह बना दूं, बड़ा congestion है यहाँ पे। अच्छा, जैसे आपने मोमेंट की इक्वेशन खुद लिख ली थी, आप मुझे लिखवा सकते हैं कि ये मैं दूसरी इक्वेशन क्या लिखूं, नोट समेशन Fy इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन कैसे लिखूं इसके ऊपर? इसमें ये चीज आएगी नहीं आएगी, क्या चीज आ सकती है? कि ये आएगा जिसका नाम क्या है VAB, एक ये आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है? रिएक्शन ऑफ दिस सपोर्ट ऑन द मेंबर, इसको आप जो भी नाम RA कहना चाहते हैं RA कह दें। तो आप मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के दिखाएं जरा, क्या लिखेंगे आप? RA माइनस VAB इक्वल टू 0, तो RA क्या हो जाएगा? जो आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आई होगी वही इसकी आपके पास यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है ना, आपको ये भी शुरू से पता है कि जो एंड पे शेयर रिएक्शन होता है वही एंड आप वहीं से आपका शेयर शुरू होता है ना। तो बेसिकली यहाँ से आपको असल रीजन ये है जो आपको अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आपको रिएक्शन रेट A पता चल जाएगा। ये आपने कौन सी चीज यूज कर दी? ये मैं फिर आपको उसी स्टोरी से जोड़ने लगा हूं, ये वाली मैंने आपको कहा था ना, जब ये पता चल जाए तो वापस इन इक्वेशंस के सेट के ऊपर आएंगे, बट दिस टाइम विल बी यूजिंग, कंप्लीट करो, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू नॉन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। तो इसी तरह से हमारे पास अब जो अननोन एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आ जाएंगी यहां से। अननोन एक्सटर्नल फोर्सेस दूसरा वर्ड आप क्या यूज करते हैं? रिएक्शंस। इसका मतलब है RA आपको पता चल गया। नेक्स्ट लुक एट दिस, ये सारी चीजें आपको पता है, ये वैसे इनका तो ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन खैर नहीं, हाँ ठीक है, इसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ का रिएक्शन अगर आपने निकालना है, ये वाला एट B RB अगर आपने निकालना है तो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना। अगर मैं ये कहूं कि RB वुड बी इक्वल टू VBA आगे प्लस VBC, ये दोनों डाउनवर्ड हैं और उसने अपवर्ड लग रहे हैं, एग्री। इसी तरह से मैं कह सकता हूं RC इज इक्वल टू V, लिखवाओ क्या हो, VCB, ये वाला, ये एंड शेयर है ना, और यहाँ पर जो रिएक्शन। अच्छा, और एक और चीज, अगर मैं जैसे इस रिएक्शन को RC कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ का जो एंड मोमेंट है, यहाँ का जो एंड मोमेंट है उसको मैं MC कह दूं और उसकी भी डायरेक्शन में यही एज्यूम कर दूं MC, तो बताएं अब मैं कौन सी, ये मैं यूज कर चुका हूं फॉर RC, ठीक है, ये भी मैंने यूज कर लिया ऊपर RB निकालने के लिए, ये ठीक है, सिर्फ ये रह गई है, ये भी कंप्लीट करो। लिखो क्या लिखूंगा? MCB प्लस MC इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा? MC इक्वल टू माइनस MCB। अब MCB की खुद वैल्यू जो भी आई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप विद अलजेब्रिक साइन आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट MC रिएक्शन एज वेल। अब हमने 6 के 6 इक्वेशन एंड में यूज कर ली ना नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लेकिन तरतीब क्या रखी? वी स्टार्टेड विद दोज नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस व्हिच करस्पॉन्डिंग टू अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। उन इक्वेशंस के अंदर हमने जो एंड मोमेंट्स आ रहे थे उनको रिप्लेस किया यूजिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एंड मोमेंट्स विद द डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। उनके अंदर से हमने एक सेट ऑफ इक्वेशन बना दी जहां से हमने अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स कैलकुलेट कर लिए, उनको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू द इक्वेशंस फॉर द एंड मोमेंट्स। एंड मोमेंट्स पता चल गए,
अब बाकी प्रोसेस फिर सिंपल है, आप एंड शीयर्स निकाल देंगे, आप ये रिएक्शंस निकाल देंगे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब आपको इसके रिएक्शंस भी पता है, एंड मोमेंट्स भी पता है, एंड शीयर्स भी पता है। सो नाउ यू कैन ड्रॉ इट्स शीयर फोर्स डायग्राम एंड इट्स यू कैन ड्रॉ इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो मेरे ख्याल से आपको समझाने की मुझे अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज आई मीन अभी ये तीसरा आप कोर्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, फिर एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस और फिर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको लेके चल रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू शट दिस डाउन। 10.1, ये इसको ज़रा देखिएगा। अब आपको मेरे ख्याल से समझाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दो स्पैन है इसके, दोनों का आई, दोनों का एल सेम। ये लोड लग रहा है इसके ऊपर 1.5 किप पर फुट, और ये 10 किप का कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है हाफ के ऊपर। अच्छा, ई की वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकली गिवन है, आई की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ एल की वैल्यू भी गिवन है आपको। आपने क्या करना है, एंड एक्शंस निकालना है, ये नहीं, एंड शीयर्स और एंड मोमेंट्स, और उसके बाद शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करनी है। ये नहीं पूछा गया कि रिएक्शन निकालने, लेकिन आप जैसे होता है ना बाई प्रोडक्ट, उसके तौर पे आप कैलकुलेट कर दें, अदरवाइज यू हैवंट बीन आस्क्ड। और बेहतर ये है कि आपको अगर खाली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है, रिएक्शंस का पूछा नहीं गया, तो आपको रिएक्शंस कैलकुलेट किए बगैर यूजिंग दो सेगमेंट्स फ्री बॉडी, उन सेगमेंट्स के फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें एंड शीयर्स और एंड मोमेंट्स आपको पता होंगी, वहीं से आपको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और ये आसान तरीका है। ये जरूरी नहीं कि अब आप एंड शीयर से एक दफ़ा रिएक्शन निकालें, फिर पूरी बीम ड्रॉ करें, उसमें लोड लग रहा है, उसमें रिएक्शन लग रहे हैं, और फिर वो जो आपने मैकेनिक्स मटेरियल में आप कह रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है तरीका, उसी को आप अप्लाई करके लगाना शुरू कर दें। ये आसान तरीका है। पता नहीं मैं आपको ये बात किस हद तक समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप समझ सकते हैं इसको। सो अब कॉन्सेप्चुअली फर्स्ट नंबर 1 स्टेप क्या था, कॉन्सेप्चुअली जो हमने लेआउट डिस्कस किया, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन में से वो इक्वेशन जो करस्पॉन्ड करती हैं टू अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। लेकिन आपने देख लिया कि उनके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करने जाते हैं एंड मोमेंट्स की, तो उन एंड मोमेंट्स के अंदर आखिरी एक टर्म है फिक्स एंड मोमेंट वाली, एग्री? तो हम शुरू में ही वो काम यहाँ पे करना जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, लेकिन प्रोसेस को बार बार वापस आने से बचाने के लिए वी स्टार्ट विथ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। गेटिंग इट? कॉन्सेप्चुअली प्रोसेस और है, और उसको क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन डेवलप योर ऑन फ्लो चार्ट। तो आपने फिक्स्ड मोमेंट्स निकाल दिए, इसलिए कि ये आगे जरूरत होगी, बस इसलिए रेडीमेड हो हमारे पास। सो आप फिक्स्ड मोमेंट्स निकालने का क्या मतलब है, अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड हों तो एंड पे मोमेंट्स क्या डेवलप होंगे और शीयर्स क्या डेवलप होंगे। फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड शीयर। ठीक हो गया? ये टेबल आपने यूज करने जो मैंने आपको बता दिया उस टेबल से। मसलन यहाँ पे उस टेबल में ऐसे लिखा हुआ था, अगर मैं आपको पता नहीं, ये चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। उस टेबल में इस तरह लिखा हुआ था, ये ऐसे बना हुआ था, W यहाँ लिखा था WL²/12, यहाँ लिखा है WL²/12। उनकी डायरेक्शंस गिवन है। क्या गिवन है? डायरेक्शंस। अब हमने चूंकि अगर वो एंड मोमेंट एक्टिंग ऑन द मेंबर शो किए जाए तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानना है, ऐसे ही है। तो ये एंड में ये मेंबर के ऊपर एक्ट कर रही है ना, यहाँ पे जो शो की गई है फिक्स्ड एंड मोमेंट, मेंबर के एंड्स के ऊपर अगर वो एंड्स फिक्स्ड हो तो क्या मोमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम वैल्यू पुट करने जाएंगे, ये काउंटर क्लॉकवाइज है ना, तो इसका मतलब है इसके साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे, और ये वाला चूंकि क्लॉकवाइज है तो इसके साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। बस इस साइन का आपने ख्याल रखना है। दूसरे केस में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से दिखा देता हूँ ये, इसलिए अच्छा यहाँ पे एज इट शुरू में हमने जस्ट फिगर ड्रॉ की हुई है, तो फिगर जब आपने ड्रॉ कर दी तो अब आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, अब आप जो उसका साइन है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन शो करेंगे। जब आप मैथमेटिकली अल्जेब्रिकली उसको शो करेंगे विदाउट यूजिंग एनी डायरेक्शन साइन कि वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, फिर आप प्लस और माइनस की तरफ आएंगे ना। तो अभी हमने ये WL²/12, WL²/12 क्या है? W is 1.5, L is 20 और 12 is a constant in the formula, तो वहाँ से हमने ये 50 किप फुट फाइंड कर दिया। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग फार्मूला इस केस का भी यूज़ करके वी हैव बीन एबल टू फाइंड 25 किप फुट और 25 किप फुट। ये रिएक्शंस भी उसी टेबल में, यानी एंड शीयर जो आपको नजर आ रहा है, फिक्स्ड एंड शीयर, ये भी आपको वहाँ से मिलेंगे। 15 किप और 15 किप, इसी तरह 5 किप। अगेन कॉन्सेप्चुअली प्रोसेस क्या था? नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की उन
उन नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से स्टार्ट करना जो करस्पॉन्ड करती हैं टू अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। लेकिन चूंकि हमने बाद में उनमें पुट क्या करना होता है, एंड एक्शंस को, एंड मोमेंट्स जो आ रहे होते हैं ना उस इक्वेशन में, उनके अंदर पुट करना पड़ता है ना दोबारा से एंड मोमेंट्स को। कोई अच्छा ये सर नहीं सुना मैंने, कंफ्यूजन है आपको? यार क्या हो गया आप लोगों को? मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बताया, मैंने आपको ये बताया था ना, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ताकि आप ये ना कहें कि फ्लो चार्ट में तो आपने कुछ किया हुआ है और न्यूमेरिकल में आप कुछ कर रहे हैं। उसी में आपको वजह समझा रहा हूं कि फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये आपको उस प्रोसेस को क्विकली फिनिश करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेट मी शो यू। ये कॉन्सेप्चुअली दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस, और ये आप इसको पैरेलल भी मान सकते हैं कि ये आप कर लें, ये भी कर लें, और फिर आप ये पुट कर दें। लेकिन जब तक दोनों हो नहीं जाएंगे आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर हम पहले इनको लिख भी लेते, फिर हम दोबारा इधर आते और फिर हम कहते हैं वापस अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, अगेन ये एक प्रोसेस हम करने जा रहे हैं ताकि ये हम पहले से रेडी कर लें, ताकि जैसे ये इक्वेशन लिखे तो फिर उनमें पुट कर दें रेडीमेड रखने के लिए। इसलिए हमने पहले ये तो सॉरी फिक्स्ड मोमेंट्स हैं, ये यहाँ यहीं से हमने रिजल्ट्स लिख दिए। लुक एट दिस, MAB फिक्स्ड, ये क्या होगा वैल्यू आप बताएं? यहाँ पे आपको 50 नजर भी आ रहा है, मैं सिर्फ साइन के लिए पूछ रहा हूँ और तो कोई मेरा मकसद नहीं। पॉजिटिव होगा इसलिए कि ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, और हमने काउंटर क्लॉकवाइज एक्टिंग ऑन द मेंबर पॉजिटिव माना हुआ है। सो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे एंड के ऊपर MBA फिक्स्ड। फिर इसी तरह BC एंड CB 25 एंड -25, और ये तो सारे अपवर्ड हैं तो सारे पॉजिटिव शेयर्स। अच्छा अगेन एक और चीज, फिर वही बात, चीज़ों को रेडीमेड रखने के लिए हमें पता है कि हमने जब ये इक्वेशंस लिखनी है एंड मोमेंट्स के लिए तो उसमें EI/L की एक टर्म आनी है, और इस केस में हमें पता है कि मेंबर AB का और मेंबर BC की सेम EI/L है, तो हमने उनको एक नाम दे दिया, छोटा नाम K1। EI/L बड़ा एक कांस्टेंट को एक छोटे कांस्टेंट में बंद कर दिया, K1 कह दिया उसको। अगर इनके कांस्टेंट्स में कुछ चले वो फिर आगे अब देख लेंगे। सो K1 कह दिया उसको, उसको कैलकुलेट करके रख दिया। ये क्यों चेंज, ये 12 से क्यों डिवाइड किया? I की वैल्यू किप पर इंच स्क्वायर इंच में थी, और हमारे पास बाकी हर चीज जो मोमेंट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किप फुट में चल रहे हैं। तो उस कंपेटिबिलिटी को खत्म करने के लिए हमने EI/L की वैल्यू किप फुट में कर दी है। क्लियर? इसलिए हमने ये 1/12 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया। एनीवेज, अब उसके बाद एक स्टेप है जो आपको डायरेक्ट करके दिखाया गया है। मैं चाह रहा हूं आप वो स्टेप खुद कर दें। MAB की इक्वेशन आप मुझे लिख के दें हर बंदा। आई वांट टू सी यू कि आप इसको डेवलप कर सकते हैं या नहीं। मैं पॉसिबल शेप ड्रॉ करने जा रहा हूं कि पॉसिबली ये ऐसे हो सकता है। तो ये इसका सर्टेन एंगल बनेगा ना। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता, थोड़ा सा टेंजेंट अब मैंने अज्यूम करें, अब मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका ये एंगल बनता ना, इसका θB जिसको बोलते हैं। VB और किस तरह 0 हैं। ओके, ये टॉपिक जो है ना मैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे, और मतलब मैं उनको बता रहा हूँ। इस सपोर्ट का क्या मतलब है? ये तो इसका नाम है ना। फिक्स सपोर्ट किस सपोर्ट को बोलते हैं? अच्छा चलो यार फिक्स को छोड़ो, मैं कहता हूँ ये रोलर सपोर्ट है ना। तो रोलर सपोर्ट किसको कहते हैं? हाँ ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन असल जो डेफिनेशन है वो सपोर्ट की वो ये उसके अंदर रिएक्शन का वर्ड नहीं आता। सपोर्ट की असल जो डेफिनेशन है ना उसमें रिएक्शन फोर्स किसी चीज का नाम नहीं आता। सपोर्ट को दूसरा नाम है रेस्ट्रेंट, और इसका मतलब है रोकना। ठीक, किस चीज को रोकना? डिस्प्लेसमेंट को। वो लीनियर भी हो सकती है, वो रोटेशनल भी हो सकती है।
अगर वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन को, यानी डिस्प्लेसमेंट की एक, डिस्प्लेसमेंट तो जनरल वर्ड है ना, मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में कोई सपोर्ट ट्रांसलेशन को रोक सकता है तो हम कहते हैं ये रोलर सपोर्ट है। अगर कोई सपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रोक सकता है तो हम कहते हैं ये रोलर सपोर्ट है। ठीक है, क्लियर है आपको? जिस तरह से अगर आप इस डस्टर को, मैं एक तरफ ये मोबाइल रख रहा हूं और एक तरफ मैं ये रिमोट रख रहा हूं, इनके ऊपर मैं इसको प्लेस करने जा रहा हूँ। आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों एक जितनी लेंथ के हैं, यानी एक जितनी हाइट के हैं, ये रिमोट भी और मोबाइल भी। तो ये रिमोट जो सपोर्ट है ना इसके लिए, दिस इज अ रोलर सपोर्ट, दिस मोबाइल इज अ रोलर सपोर्ट फॉर दिस डस्टर। अब अगर मैं ये भी कर दूं कि इसको मैं यहाँ से भी, यानी यहाँ से भी कुछ रख दूं और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रख लूँ कि ये ना इसको इधर जाने दे ना इसको इधर जाने दे, इस डस्टर के इस एंड को, तो ये पिन सपोर्ट बन जाएगी। यानी पिन सपोर्ट सिंपली जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ट्रांसलेशंस को रोक सके उसको हम पिन सपोर्ट बोलते हैं, या हिंज सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट हम ऐसी सपोर्ट को बोलते हैं जो उस जहाँ पे आप लगा दें उसको, जिस बीम के जिस एंड के ऊपर, वो एंड ना उसको कोई किस्म की ट्रांसलेशन होने दे ना कोई किस्म की रोटेशन होने दे। उस सपोर्ट से हम, मतलब मैं इसको ऐसे ग्रिप कर लेता हूँ, ये दिस माई हैंड इज अ फिक्स सपोर्ट फॉर दिस डस्टर। आप कहेंगे आप इसको लोड लगाएंगे तो ये तो नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा नीचे, लेकिन जहाँ मैंने पकड़ा हुआ है वहाँ नहीं जाएगा अगर मैं इसको अच्छी तरह ग्रिप कर पाऊँ। ठीक है, I spent 1 hour explaining this to my mechanics and materials students, 1 hour, maybe more than that. उनको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया था, but I used real life examples to explain to them what a support actually means, because this is what most students would be confused about supports even till the end of their degree. So अगर वो सपोर्ट की, फिक्स सपोर्ट की डेफिनेशन ही अगर ये है कि वो कोई ट्रांसलेशन कोई रोटेशन जहाँ पे वो लगा है वहाँ नहीं होने देगा, तो अगर आपको नज़र आ रहा है, ये दिखाया गया है कि ये फिक्स सपोर्ट है, तो इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि वहाँ पे कोई ट्रांसलेशन कोई रोटेशन नहीं हो सकती। सो एवरीबॉडी इज क्लियर कि अगर सपोर्ट है तो इसका मतलब ही यही है कि दिस इज, इट मीन्स कि ये इस काबिल है कि उस जगह पे कोई किसी तरह का रेस्टोरेंट डेवलप कर सके। This is what it means. But definition इसमें embedded है, definition में अगर ये रोलर सपोर्ट इस जगह की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रोक नहीं सकता, यू कैन नॉट कॉल इट अ सपोर्ट, फिर ये है ही नहीं सपोर्ट, इसका मतलब है ना। ये थोड़ी सी और डिस्कशन है उसमें, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। आइडियलाइज वर्ल्ड के अंदर दिस व्हाट यू कैन होल्ड ट्रू। ठीक है, सो VA is 0, VB is 0, VC is 0 and theta A is also 0. Clear हो गया? So this is what you end up with. First equation MAB. Similarly MBA में अब आपको थीटा A कहीं भी नहीं नजर आ रहा, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या हुई है, सब्स्टिट्यूट 0। VB नजर आ रहा है कहीं भी, VB नजर आ रहे हैं इन चारों इक्वेशन में, क्यों 0। VA VC कोई चीज नजर आ रही है, दे ऑल आर 0 एंड दैट्स व्हाई यू सी दीज इक्वेशंस वेरी सिंपल। सिर्फ एक कौन सी डिस्प्लेसमेंट मेजर्स आ रही हैं इसके अंदर, थीटा B एंड थीटा C। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉन्सेप्चुअली, ये स्टेप मैंने आपको पहले दिखाया था, ये नोड B है, ये नोड C है, इनकी जब नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे तो कौन कौन सी इक्वेशंस लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग टू अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, और वो कौन कौन सी हैं, दोबारा बोलो बेटा, मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर्स की बात कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब हम ये नोड है ना, इस पे समेशन FY = 0 भी अप्लाई होता है, समेशन M भी अप्लाई होता है।
इसी तरह इसके ऊपर भी दोनों इक्वेशंस अप्लाई होती हैं। 4 इक्वेशंस होगी ना इक्विलिब्रियम केस का मतलब है हमारे पास इस केस में। इन चारों में से हम 2 इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं टू स्टार्ट विद। कौन सी लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग टू, पहले जनरल बताओ ना, कौन सी नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहले लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग टू अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, और वो इस केस में क्या है? थीटा बी और थीटा सी। इसका मतलब ये है कि बी के ऊपर भी समेशन ऑफ मोमेंट्स और सी के ऊपर भी समेशन ऑफ मोमेंट्स। यही इक्वेशन बनेगी ना करस्पॉन्डिंग टू थीटा बी एंड थीटा सी। ये पहली वाली इक्वेशन, दिस इज समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। उसमें क्या आएगा? एक एम बी आएगा, एक एम बी सी आएगा, यही आएंगे ना। और इसमें 0, एम सी बी इक्वल टू 0 एंड दिस ली। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? एम बी ए की जगह पे यहां से ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, और वो किस फॉर्म में होगी? किस टर्म में? थीटा बी। साथ में एक और चीज भी है थीटा बी के, K1। हम कह सकते हैं कि ये K1 थीटा बी की फॉर्म में होगी, यही होगी ना। आप इसको एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कैरी करना। आप थीटा बी, असल में अननोन थीटा बी और थीटा सी हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशंस इजी टू परफॉर्म, आप यूं समझ लें कि मेरी अननोन्स हैं K1 थीटा बी, पूरा एक प्रोडक्ट जो बन रहा है। तो आप K1 थीटा बी फाइंड कर दें, K1 थीटा सी फाइंड कर दें, उसके बाद K1 की वैल्यू पुट करके आप थीटा बी थीटा सी अलग से अगर इंटरेस्टेड है तो फाइंड कर ले, लेकिन पहले आप K1 थीटा बी K1 थीटा सी फाइंड कर लें। ठीक हो गया? क्लियर? सो जब आप MBA की वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी इन टर्म्स ऑफ K1 थीटा बी। ये जो हमने यहाँ ये प्लस 50 पुट हो जाएगा, आई एम सॉरी यहाँ वाला माइनस 50 ये पुट हो जाएगा, एंड देन MBC। ठीक है, MBC की ये इक्वेशन आएगी उसमें। तो जब आप सम अप करेंगे और अच्छा, इसी तरह से फिर आपने अगली इक्वेशन में भी MCB इक्वल टू 0 के अंदर ये वाली इक्वेशन पुट कर देनी है। ठीक है, MCB की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी थीटा बी और थीटा सी की फॉर्म में। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? उन्हीं 2 इक्वेशंस के अंदर सिर्फ मोमेंट्स, एंड मोमेंट्स की वैल्यूज पुट कर दी हैं बस। K1 थीटा बी की वैल्यू भी आ गई, K1 थीटा सी की वैल्यू भी आ गई। अब आप थीटा बी निकाल लें तो K1 से डिवाइड कर दें, इसको भी, और ये रेडियन में आंसर आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। मुझे कैसे पता चला काउंटर क्लॉकवाइज है? द साइन वाज पॉजिटिव, और मैंने चूंकि रोटेशन पॉजिटिव लिए हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डेरिवेशन भी देख लीजिएगा, तो इसलिए मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज कह रहा हूँ। अब आपके पास थीटा बी थीटा सी की वैल्यूज आ गई हैं, यू कैन पुट देम बैक ओवर हेयर। लेकिन उससे बेहतर है कि मैं कहूँ कि मेरे पास K1 थीटा बी और K1 थीटा सी की वैल्यूज आ गई हैं, ताकि मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ। K1 थीटा बी की जगह पे 1.786, K1 थीटा सी की जगह पे 5.357, and you will be able to get these MAB, MBC and so on. Clear? अब एंड मोमेंट्स आ गए। एंड shears के लिए अगेन देयर आर 2 ways, मैंने पहले भी रिपीट कर दिया। Either you use equilibrium equation or you can use the same relationships between end shears and the displacement measures. यहाँ पे equilibrium equations का मेथड दिखाया गया आपको। एंड मोमेंट्स आ गए ना अब आपके पास। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट देयर डायरेक्शन। प्लस साइन आ गई, प्लस साइन आ गया इसके साथ, इसका मतलब ये क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज एक्टिंग ऑन द मेंबर। लुक एट दिस, काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज नेगेटिव क्लॉकवाइज। क्लियर? ये पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज भाई, एक्टिंग ऑन द मेंबर, और ये 0, उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना। सो अब आप सिंपली ये एंड शेयर्स निकाल सकते हैं। VAB VB है, मसलन समेशन FY इक्वल टू 0 कर दें, और किसी भी A के अबाउट या B के अबाउट मोमेंट ले लें तो दूसरा निकल आएगा। ये तो मेरा ख्याल है आसान काम है। इसी तरह यहाँ भी आप कर लेंगे। सो यू विल बी एबल टू फाइंड VAB, एंड इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप यूज करके भी, जो एंड शेयर्स और डिस्प्लेसमेंट मेजर्स के बीच में रिलेशनशिप है, उनको यूज करके दिखाया गया। इनकी असल इक्वेशन VAB की ये थी जो आपको यहाँ नजर आ रही है। इसमें थीटा A चूंकि 0 है वो पुट की गई है वैल्यू, और K थीटा B जो बनेगा वो हमारे पास वैल्यू है। ये सारी चीज़ें 0 हैं। इसकी वैल्यू भी हमने शुरू में कैलकुलेट कर ली थी 15।
तो ये वैल्यू ये बेसिकली क्या चीज़ पुट हुई है, के थीटा बी, ऐसे ही है ना, और ये एल की वैल्यू 20 फीट पुट हुई है इसके अंदर. सो यू कैन यूज दिस इक्वेशंस और यू कैन यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ठीक हो गया. और ये रिएक्शंस आसान है. अब आर ए इक्वल टू वी ए बी, ये पहले भी समझा चुका हूँ. एम ए इक्वल टू एम ए बी, आसान है ना ये तो. आर बी वुड बी सम ऑफ वी बी एंड वी बी सी, आर सी वुड बी वी सी बी एंड एम सी एंड इक्वल टू एम सी बी वुड बी इक्वल टू 0. एंड देन यू कैन ड्रॉ द shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स. सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एम ए की वैल्यू या इवन एम ए बी की वैल्यू, एम ए कह लिए एम ए बी एक ही चीज़ है ना. यहाँ पे तो प्लस साइन है इसके साथ यहाँ पे, है ना. तो जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ए के ऊपर मैंने ये जो मोमेंट शो किया हुआ है ये नेगेटिव क्यों ना लिखा हुआ है, वहाँ तो पॉजिटिव नहीं आया था. मोमेंट है ना, मोमेंट का तो डाउनवर्ड अपवर्ड के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होता ना. वहाँ पॉजिटिव आंसर आया ना. मैं दोबारा आपको दिखाऊं, एम ए का आंसर आपको दिखाऊं 53.57 किप फुट, इधर एम ए बी का आंसर आया था पॉजिटिव. सॉरी, ये आपने कुछ कहा है. यस, बेंडिंग मोमेंट इज एन इंटरनल फोर्स जो कब आपको नजर आती है, व्हेन यू कट अ सेक्शन. यहां जो आपको एम ए बी नजर आ रहा है विद अ पॉजिटिव साइन, ये एज एन एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास आ रही थी. और एक्सटर्नल फोर्स का साइन कन्वेंशन किस चीज पे बेस होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज. यही बताया मैंने आपको, और यही मैं मैकेनिक्स एंड मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ. एब्सोल्युटली यही चीज पढ़ा रहा हूँ. और इसका मतलब है इस पॉजिटिव साइन का इंटरप्रिटेशन किस बेस पे होगी, बैक टू द डेरिवेशन. जो डेरिवेशन में डायरेक्शन शो की गई थी, इसलिए मैं कह रहा था डेरिवेशन अच्छी तरह से समझ लो. जो डेरिवेशन में डायरेक्शन शो की गई थी, इसका मतलब है इसकी भी वही डायरेक्शन है. पॉजिटिव साइन का ये मतलब है. तो हमने उसको उसी डायरेक्शन में शो कर दिया. उसके पॉजिटिव साइन का यही मुतालबा था ना कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज हूं, तो हमने उसको शो कर दिया भाई आप काउंटर क्लॉकवाइज हो, मान लिया, हमने शो कर दिया ना. उसके पॉजिटिव साइन का मुतालबा वहां पे खत्म हो गया. दैट्स इट. उसको जितने उसकी यही इंटरप्रिटेशन बननी थी, हमने उसको इंटरप्रेट कर दिया. एंड द स्टोरी. हमें बस ये पता चल गया कि ये मोमेंट हमने ऐसे लगाना था या ऐसे लगाना था, बस उस पॉजिटिव साइन का ये मतलब था सिर्फ. एंड मोमेंट यूं लगना है या वन वे और दी अदर, जो लगना है वो हमने पता करना था बस. अब जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो वो बेंडिंग मोमेंट, इसको इनमें से किसी को मैंने बेंडिंग मोमेंट नहीं कहा, मैंने एंड मोमेंट का वर्ड यूज किया. ऐसे ही है. एंड मोमेंट का मतलब है उस मेंबर का अगर मैं सेक्शन काट लूं एंड के ऊपर, तो उसके एंड के ऊपर जो मोमेंट होगा है असल में वो सेक्शन काट के एक्सपोज किया गया बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन मेरी डेरिवेशन के अंदर उसको मैंने जो डायरेक्शन दी थी, अगर वही डायरेक्शन इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वही डायरेक्शन है जो मैंने साइन कन्वेंशन में शो की थी. अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं बेंडिंग मोमेंट. वो एक इंटरनल फोर्स है, उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है. उसका ताल्लुक इस चीज से है कि वो जो बीम में डिफॉर्मेशन होगी वो सैगिंग होगी या हॉगिंग होगी. क्लियर है ये? इस अब चूंकि ये प्रोड्यूस हॉगिंग कर रहा है ना, हॉगिंग मोमेंट है ना ये हॉगिंग, ये यहाँ पर मैं जस्ट क्लोज टू दिस डिफरेंशियल डिस्टेंस के ऊपर के मैं सेक्शन काटूंगा, तो मेरे पास, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो इस तरह का सेगमेंट बनेगा. ये एंड ए है, उसके ऊपर ये बाहर से ये मैंने एंड मोमेंट लगा दिया, और ये जो सेक्शन है ये मैंने बाद में काटा है अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए. बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन क्या थी, मैंने पूरा 2 घंटे उसके ऊपर एक आपको एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ाया. बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन क्या है, किसको पॉजिटिव मानते हैं, सैगिंग को पॉजिटिव मानते हैं ना, और वो सैगिंग ये बनेगी, सैगिंग की यही डायरेक्शन बनेगी ना. तो जब आप इस मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इसका साइन इसके अपोजिट बनेगा ना. मसलन अगर ये आ रहा है 15 जो भी वैल्यू थी वहां पे, मसलन ये है 53.57,
तो इसकी जब आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आप इसका नाम दें, उसकी वैल्यू -53.57 बनेगी ना। इस वजह से ये है नेगेटिव। ठीक हो गया, क्लियर है ये। शेयर में भी यही है, एंड शेयर यहाँ पे आप पॉजिटिव आंसर आए ना हमारे पास, VAB इक्वल टू यस, यहाँ पे 15.53। इस प्लस साइन का सिर्फ ये मतलब है कि वो जो एंड शेयर लगना है वो अपवर्ड लगना है, बस एंड ऑफ द स्टोरी। जो मैंने यहाँ दिखाना था आपको, यहाँ पे ये सारे आंसर्स पॉजिटिव आए हैं वीज के, VAB सारे, ये VB है, गलती से VAB लिखा हुआ है, ये VCB है, ये गलती से VAB लिखा है। ठीक, तो ये सारे पॉजिटिव आ गए। सारे पॉजिटिव आने का मतलब ये था कि ये सारे अपवर्ड हैं, एंड शेयर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड ऑन द एंड्स ऑफ द मेंबर्स, बस इसका ये मतलब था। बस यहाँ पे इनके इस साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आप वापस अपनी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम, जो कि इंटरनल फोर्स हैं, उनके साइन कन्वेंशन में आ गए। अब शेयर फोर्स कब पॉजिटिव होता है? साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स के लिए क्या थी? अगर पॉजिटिव फेस है तो उसके ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव फेस है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड पॉजिटिव। क्लियर हो गया? या मैंने एक और भी मैंने तरीका बताया था, लेकिन अगर आपको ये याद है तो ये भी ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सेक्शन यहां पे काटूंगा, मैं आपको जैसे मैंने पहले काटा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 15.53 के इसके ऊपर यहां पे लोड लग रहा है, ये एंड शेयर है, ये वाला लग रहा है ना, वहां जो रिजल्ट आया है यहां पर, ये मुझे शेयर यहां पे कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी? ये पॉजिटिव फेस है ना, कि अगर मैं इसका नॉर्मल देखूं तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव फेस है। तो पॉजिटिव फेस के ऊपर मैंने क्या कहा? अपवर्ड इज कंसिडर्ड पॉजिटिव शेयर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये अगर फाइंड करना हो, और ये देखो 15.53 की ये भी अपवर्ड है, तो इसका मतलब है इसके साइन क्या आएगा? नेगेटिव। एंड फॉर दैट रीजन यू सी अ नेगेटिव साइन अप हियर। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन इसलिए यहां भी दिखाई गई है, आपको यहां भी दिखाई गई है, ताकि पता चले कि हो सकता है किसी और मुल्क में कोई और बंदा किसी और को पॉजिटिव मानता हो, वो हॉगिंग को क्या पता कोई बंदा पॉजिटिव मानता हो। जैसे यूके में इसके अपोजिट ड्रॉ होता है, तो हमने अभी यहाँ पे शो किया, इसके अपोजिट ड्रॉ होता है यूके में। ये अमेरिकन बुक है ना, तो इसमें इस तरह ड्रॉ हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? बाकी प्रॉब्लम कर लोगे? 10.2 आपने खुद करना है, मुझे जमा ना करवाओ, खुद करना है। मैं यहाँ पे आपके पास चेक करूंगा, ठीक है? 10.2 आपने खुद करना है, 10.2 भी खुद करना है, और ये 10.3 चले मैं आपको करवा लूंगा।